जोहार मारांग प्रार्थना बुरु करिए। जय नायो। जोहार जोहार मारांग बुरु जोहार जय नायो। हाँ विजय, जरा जी इनसे सर। बताओ, ये इनका खाने के लिए सब्जी या खेती या पानी, इनका सब्जी करते हैं कुछ? माय डियर फ्रेंड बैद जी, ये जो अभी हम दिखा रहे हैं, हमारा उद्देश्य था क्या डिजिटल एथनोग्राफी के माध्यम से हम एथनोग्राफिक स्टडी कर सकते हैं। तो यह एक मैं सैंपल आपको दिखा रहा हूं कि अगर आपके पास मेथोडोलॉजी क्लियर है, गांव में इंफॉर्मेंट से कांटेक्ट है, कैसे एथनोग्राफी यानी उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में उनकी कल्चर के बारे में स्टडी कर सकते हैं। यह हमारा दिखाने का उद्देश्य था। तुमे कुछ चाष करुच खेती बाड़ी? हाँ चाष कर कौन कौन चाष कर? चाष कर धान चाष करथिले, धान चाष करके अमल करले, मशीन रे पेटी दे के धान रखी दे जी। हाँ, ये सर ब्रिंजल का खेती किए हैं और मूली साग किए थे, वो खा दिया है, लेकिन अभी ब्रिंजल है वो। अब देखिए मैं आपको, ये तो आपने उड़ीसा का देखा संथाल, अब हम बंगाल के संथाल को दिखाते हैं। You know why I am showing all these things? What is the objective? Whether through digital technology you can study part of ethnography. I say not all. And I started these podcasts because after COVID, I read a WhatsApp message, die empty. The question was posed that, where is all the wealth in the world? Nobody could reply, and the person himself said that it is in the cemetery. Because the people, the knowledgeable people, the knowledge of wealth, the wealth of knowledge that is there, they carry that in the cemetery. So we must bring back that wealth. We must leave everything here. We must die empty so that our generation and next generation, they should learn. So I started working hard thereafter. Firstly, I wrote The Truth About Caste, then Tribal Education and Health. Now I'm working on two books. One is Adivasis, Waiting for Justice, and another is Adivasis, Jal Jangal Jameen. And then I started with a podcast. I wish all the senior anthropologists, they share their experiences. Actually, anthropologists are very shy in talking about themselves. They should deliver their knowledge for posterity, and also because my stage is for the budding civil servants who will be in future, they can learn from what anthropology can give them and how they can use anthropology. In that regard, I must thank Professor Rai. मैंने एक बार कहा एंड ही एग्री टू दैट। जी प्लीज आप दूसरों को भी कहिएगा। आई हैव बीन आफ्टर प्रोफेसर केसी मल्होत्रा, but he is shying away from this. I want everybody who is on the board, please convince him that he has a wealth of knowledge. मैं उनका सीवी देखा उसको, इट इज बियॉन्ड कम्प्रीहेंशन। मैंने विनय श्रीवास्तव का सीवी देखा था, went into 40 pages, but he is no more with us. So I wish that people, I have a stage, why not to take advantage of it? Right, sir. Please welcome. Okay. I don't have to introduce because the introduction is there on the screen itself. Okay. All right. Thank you very much, Naresh Bhai. बहुत शुक्रिया. The purpose of this morning discussion is application of anthropological knowledge for tribal development. Right. Keeping this in mind, application of anthropological knowledge. When we see anthropological knowledge, let me begin how anthropological knowledge is unique for contributing social development, tribal development. Each subject, physics,
chemistry, biology, they have some fundamental basic principle and theory. That is why they are unique. What is anthropological theory? What for anthropological is distinct from other disciplines for tribal development? I'll share that. Sure. I must say, anthropology is very rich subject. What I am here today talking to you because of my anthropological knowledge, approaches my anthropological studies. I am proud to be a student of anthropology. Let me begin with this. It will be interactive session. In between, I'll be talking to you. Any one of you can raise your hand and ask question. Okay. So it will not be a kind of lecture. It's more of an interactive session. Let me begin about anthropology. You know, the first of anthropological knowledge comes from Auguste Comte. What did he say? As a scientist, sociologist, philosopher, what did Auguste Comte say? That for understanding development, you have to have observation. What do you mean by observation? You are watching me. I am watching some people. It's observation. He say observation is not just watching. Observation is understanding the interconnectedness, how one part influences other. That is observation. And then this is the positivism, observation. And then he also used the word another, experimentation. Suppose you observe that S.B. Roy is wearing glass. Because of his glass, he can watch. This is observation. Whether this is true or not, whether the glass is responsible for S.B. Roy's sight or not, this is observation. How do you know that? For that, you have to do experiment. So, my dear friend, the science is observation and experimentation. If you say S.B. Roy is able to see because of his glasses, this is observation. It is not enough. We have to do experiment. How do you do experiment? You remove the glass of S.B. Roy. Can he see? Yes, he can see. Oh, then observation was not correct. So in a simple way, whatever you observe, in order to prove this observation is correct, you have to do experimentation. And unless you do experimentation, your observation will not have a scientific statement. You know, as a student of anthropology, we are taught the first part. What are we taught? Observation. In anthropology, we are not asked for experimentation. So, what did we do? Action anthropology with observation, some experimentation also. So maybe many of my students of anthropology will be surprised, shocked, may not agree with me. No. We anthropologists do not have right to do experiment. We have to preserve the culture of the people. We have to document the tradition of the people. We don't have any right. Let the people continue with that. Here I say, as an anthropologist, if you are asked to study, document, preserve the culture, fight for the tradition, advocate to preserve the tradition of the community or the tribal, if you advocate that, I will ask one question. If the tribal tradition, all culture are appropriate for the growth and development of tribal, tell me one thing.
Why? In the same village landscape, why? In the same village landscape, tribals have got malnutrition, more mortality, women health on, more infection compared to non-tribal living in the same landscape. Tell me. So should anthropologists continue with documentation years after year, that the tribal have malnutrition, they are deprived, they are having lower education, they are having more malnutrition and lower hemoglobin? How many years keep on documenting this kind of thing? Can't you think that there has to be improvement also? If because of the tradition, tribal women for the childbirth, they do not go to public health center and they have home delivery and more mortality, more infection, do you think that culture should continue? Think on that. Think on that. If anthropologists are asked to document the culture, no right to change the tradition, I say, then I'll not be anthropologist. I'll be a human being and work for the improvement of the health of the tribal, improve the hemoglobin level, reduce the mortality, improve the food system, improve the food system. I have to work for that. Nowhere Malinowski, nowhere Radcliffe Brown, nowhere any anthropologist has mentioned that we do not have right to improve the quality of the people. We have right. We have not only right, we have responsibility. We have responsibility also to improve the quality of the tribal land. We have, if we are working for the tribal. So this is the first thing I wanted to share with you, that me as a student of anthropology, I agree that tribal knowledge is important, but I also say that some of the knowledge, some of the culture, some of the tradition may not be relevant for sustainable development. In that case, we have to discuss with them. I need not impose my idea on them, but we discuss with them. When the question comes, we discuss with them what is to be done. We start opening a new chapter in anthropology, which is, of course, based on traditional anthropology, participatory action research. Participatory action research. What does it mean? Often we must have heard this term, participatory action research, and participatory observation. What is the meaning of participatory observation and what is the meaning of participatory action research? This thing I will share with you and also try to connect with some of you who are interested in anthropological knowledge for application of tribal development. I told in the beginning, my focus will be application of anthropological knowledge for tribal development. Here, participatory observation is one of the anthropological tools. Participatory action research is a developed process. So how do we do that? Let me tell again, as a student of anthropology, the first founder, we call one of the founder, after quote, Malinowski. One thing I will tell my dear friend, as a student of anthropology, if you are a practicing anthropology, you have to remember all the theory of anthropology. I will say again, if you have to apply any knowledge as an intervention
you have to be cautious on all the theory, not one theory. Here I will relate. Malinowski mentioned that community development means meeting physiological need first. I hope you all remember theory of Malinowski, meeting physiological need. And Malinowski mentioned that in order to meet the physiological need like food, shelter, reproduction, the community has got their own social institution, rules, regulation. Since all of us are students, I am a habit of repeating certain things. Pardon me. So when you go for a tribal development, what is the first thing you should do? Any development practitioner. रोड बनाना है, ट्राइबल का कल्चर ड्रम बजा के कंजर्वेशन करना है, ट्राइबल डेवलपमेंट, स्कूल बनाना है, ट्राइबल डेवलपमेंट, हाँ, बिजली देना है गांव में, ट्राइबल डेवलपमेंट, ऑल दीज। सिर्फ क्या नहीं करना है, सिर्फ खाने का इंतजाम नहीं करना, फूड के बारे में नहीं सोचना है, फिजियोलॉजिकल नीड के बारे में नहीं सोचना है, उनके कल्चर मतलब ड्रम, बीटिंग, पेंटिंग, स्कूल, है ना, ये होगा ट्राइबल डेवलपमेंट। सो एज ए स्टूडेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, what should be the first thing you should do? Can I have some conversation with you? Anyone of can raise hand and say when you go for tribal development, आप क्या करेंगे? उनका डॉक्यूमेंट करेंगे, उनकी आर्ट कला कितनी अच्छी है, ड्रम बजाते हैं, कितना अच्छा नाचते हैं, कितनी अच्छी गाते हैं, उनको एजुकेशन होना चाहिए, स्कॉलरशिप होना चाहिए, रोड होना चाहिए, या खाना पहले है क्या? What is the food system? What is the process of physiological need? What do you say? What is the first thing you'll be doing? I can see some name. Sumit Ojha, Priyanka. Can we have some conversation with you also? यस सर। सर अगर हम इसमें इनकी क्या कहते हैं फूड की प्रैक्टिसेस के ऊपर चेंज कर दे तो हमें उनकी फूडिंग हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा, तो वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस नहीं हो जाएगा? अगर हम लाइक सपोज मैंने ये तो नहीं कहा कि फूड हैबिट चेंज किया जाए। मैंने कहा था क्या खाना उनके पास है, वॉट एवर फूड दे हैव, डू दे हैव, उनका खाना है नेचुरल फूड, राइट? ठीक है, यस सर। पानी पीते हैं, पानी चेंज करने की बात तो हम नहीं कर रहे हैं, पानी उनके पास स्वच्छ पानी है सर, लेकिन अगर वो खाते हैं, उनके पास मछली है, सब्जी खाते हैं, उनके गांव में सब्जी है, ठीक है। और जो उनको मिलना चाहिए, जो उनका फूड हैबिट है, वो क्या उपलब्ध है? अगर उनको खाना अच्छा मिलता है, परिवेश अच्छा होता है, तो उनका माल न्यूट्रिशन क्यों हो रहा है? सोचिए, कभी सोचा? This is what Malinowski has mentioned, my dear friend. As a student of anthropology, we have to study meeting, how do they meet the physiological need? This is what I am saying. I'll come to you, how do we do that? But as a student of anthropology, we have to follow the pattern meeting physiological need. Food एक शब्द है, इसके माने है खाना. Food system is all खाने की प्रक्रिया. So Malinowski mentioned about the food system, not food alone. अगर आप एंथ्रोपोलॉजी के विद्यार्थी हैं, तो आपको एंथ्रोपोलॉजी की थ्योरी को समझना पड़ेगा. So Malinowski has mentioned to understand the physiological need and meeting the physiological need. Physiological need means उनकी हवा, पानी, सांस लेना, ग्रीनरी,
उनका लाइव स्टॉक, उनकी साग सब्जी। डू यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट फॉर ट्राइबल? टेल मी। अगर है यस अच्छी सर। बात है, अगर नहीं है देन कम एप्लीकेशन। हमारा मुद्दा है एप्लीकेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी। जो नहीं है तो कैसे करेंगे? दिस इज वन। कमिंग टू द सेकेंड, मैलिनोव्स्की के साथ काम करते थे रैडक्लिफ ब्राउन। वैद जी ने कहा है हमें एंथ्रोपोलॉजिकल के बारे में, रैडक्लिफ ब्राउन। तो अगर हम मैलिनोव्स्की की थ्योरी अच्छी से समझेंगे तो उसमें उन्होंने कहा है कम्युनिटी हैव गॉट सोशल इंस्टीट्यूशन रूल्स रेगुलेशन पैटर्न फॉर मीटिंग द फिजियोलॉजिकल नीड। उन्होंने एक बात कहा, उनके साथ काम कर रहे थे रैडक्लिफ ब्राउन, अंडमान आइलैंड में भी काफी काम किया, एंड आई वाज पोस्टेड इन अंडमान आइलैंड 1973। आपको शायद किसी को बहुतों का जन्म नहीं हुआ होगा। हैड बीन वर्किंग विद द ट्राइबल अंडमान आइलैंड 1972-3 से तब से। So Radcliffe Brown has mentioned, and in case of Guru, it is not meeting physiological need alone. We have to see the community has got many more social institutions to keep the equilibrium of the society. यानी सिर्फ खाने के लिए ही रूल्स रेगुलेशन सोशल इंस्टीट्यूशन नहीं है। समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत सारी सामाजिक नीति रीति होती हैं। यह किसने कहा? रैडक्लिफ ब्राउन ने। बहुत सारी नीति रीति होती हैं, बहुत सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं। जैसे फैमिली के इंस्टीट्यूशन एक है, विवाह प्रथा है, मैरिज के लिए इंस्टीट्यूशन है, जन्म होता है बर्थ के समय बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस हैं, मृत्यु है उनके इंस्टीट्यूशन है, खेती करने के लिए बेल बजा है, पेड़ पौधे को बचाने के लिए सैक्रेड ग्रुव है, उसके लिए इंस्टीट्यूशन है। तो एज ए स्टूडेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी हमारी सेकेंड लर्निंग क्या हुई? खाने के अलावा देयर आर मेनी सोशल इंस्टीट्यूशन। देन वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द सोशल इंस्टीट्यूशंस व्हिच मेक द सोसाइटी बैलेंस। एंड देन एज ए स्टूडेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी आप लोगों ने पढ़ा होगा ईबी टाइलर का कल्चर, है ना? यस मैं ये कहूंगा दोस्तों, अलाउ मी टू कॉल यू फ्रेंड्स, हर एक थ्योरी को जबानी याद रखना पड़ेगा, तब आप प्रैक्टिशनर बन सकते हैं डॉक्टर जैसे। एक थ्योरी जानते हैं, दूसरे नहीं जानते हैं, तीसरे नहीं जानते हैं, वो सेमिनार कॉन्फ्रेंस के लिए ठीक है, कॉलेज में पढ़ने के लिए ठीक है, गलती हो गई सर कल ठीक कर देंगे। लेकिन आप डेवलपमेंट फील्ड में हैं, आप एक गलती करेंगे तो ट्राइबल का नुकसान हो जाएगा, याद रखिए। इसलिए हर एक थ्योरी को याद रखना है। देन कम्स योर, टाइलर ने कहा, रिमेंबर, कैन समबडी विल टेल मी व्हाट इज द थ्योरी ऑफ टाइलर? कल्चर के डेफिनेशन में कोई जल्दी बोलिए, एक दो, समय कम है। मैं आपका विद्यार्थी जैसा हूँ नरेश जी, मैं बताता हूँ, हम याद करके आए हैं। प्रैक्टिशनर को हर एक थ्योरी याद करनी पड़ेगी, प्रोफेसर को नहीं। प्रोफेसर तो आज भूल जाएंगे, कल दे देंगे या पीपीटी दे देंगे। प्रैक्टिशनर और प्रोफेसर में बहुत फर्क हो जाता है। प्रैक्टिशनर इज जस्ट लाइक ऑपरेशन थिएटर पर सर्जरी कर रहा है, और प्रोफेसर ऑफ सर्जरी, सर्जरी क्लासरूम में पीपीटी में पढ़ा रहा है, दोनों में फर्क है। सर्जरी पढ़ाते समय कोई पॉइंट भूल गया तो कल बता देंगे, ऑपरेशन थिएटर में आज कर लेते हैं, कल नहीं, ऐसा नहीं होगा। सो आई कीप ऑन सेइंग डेवलपमेंट practitioner of anthropology has to be more alert than teaching anthropology. Anyway, टाइलर ने कहा, मैं याद रखने के लिए, कल्चर इज बिलीफ और मोरल। यानी कोई भी कल्चर है वो बिलीफ है, और वो मोरल वो ट्रेडिशन से आता है, दैट बिकम द कल्चर।
और उस कल्चर प्रैक्टिस के लिए उस समाज के लोग उनको हैबिट से वो सीखते हैं. People of that member of the society, they inherit the habit, उनको आदत डाली जाती है. जो समाज में ध्यान दे, आदत डाली जाती है, आदत डाली जाती है, हैबिट एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी, दैट नॉलेज इज कल्चर. मेरा एमएससी पीएचडी जो है वो हमारा कल्चर नहीं है, लेकिन हम पिताजी का पांव छू के प्रणाम करते हैं, दैट इज माय कल्चर. पिताजी का पांव छू के प्रणाम करते हैं, दैट इज माय कल्चर. और नॉलेज जो है पांव छूने वाला नॉलेज, दैट इज ए कल्चर. और हम आपको एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा रहे हैं, ये हमारा कल्चरल नॉलेज नहीं है. ये जो पांव छू के प्रणाम करना, ये हैबिट बचपन से डाला गया, और इट इज ए बिलीफ सिस्टम. प्लीज रिमेंबर, इट्स ए बिलीफ सिस्टम. कोई बता सकते हैं पांव छू के प्रणाम क्यों करते हैं? श्रद्धा के लिए. पांव छू के क्यों प्रणाम करते हैं? कम ऑन, एनीवन, कोई बता सकते हैं? मैं बताऊं, नाक छू के क्यों नहीं प्रणाम करते हैं? कभी सोचा? सर बिकॉज हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए. सर जब जब हम किसी को पैर छूते हैं, उनके आगे झुकते हैं, तो हमारे अंदर जितना ईगो होता है वो सरेंडर हो जाता है. तो आई थिंक ओ, अच्छा अच्छा अच्छा. यानी चाइनीज अपने पापा को पांव छू के प्रणाम नहीं करते, जिंदगी भर उनका ईगो बना रहता है ना. नो सर. एंड आई थिंक सर हमारे टो में एक बोन होती है, सॉरी एक नर्व होती है, जिसको टच करने से शायद ये नर्व सिस्टम से समथिंग रिगार्डिंग होता है, तो ये उससे भी लिंक है. अच्छा अच्छा. और जो लोग पांव छू के प्रणाम नहीं करते हैं, उनका क्या होता है? आप बता सकते हैं? जो जो पांव छू के प्रणाम किए हैं उनका सबका इस तरह राइज हुआ है, जो जो प्रणाम छू के नहीं करते हैं उनका नहीं हुआ है. कैन यू प्रूव दैट? कमिंग बैक, पांव छू के प्रणाम करना या तुलसी पेड़ की पूजा करना, देयर आर मेनी बिलीफ सिस्टम. जो टाइलर ने कहा एज ए स्टूडेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, जो नॉलेज बिलीफ सिस्टम से हो उसको हम क्वेश्चन नहीं करते हैं, वी डू इट बिकॉज इट ट्रेडिशन कल्चर. मैं ये बताना चाहता था, what I want to tell you, there are many of our belief system, that is the knowledge, that is the culture. सभी नॉलेज कल्चर नहीं है. I repeat, सभी नॉलेज कल्चर नहीं है, लेकिन जिस नॉलेज को बिलीफ सिस्टम से है और हम क्वेश्चन नहीं करते हैं, रैशनलाइज नहीं करते हैं, that is the culture. So we have to learn the culture of the tribal, which comes from that. And then coming to Malinowski's tradition culture on the Raymond Firth for the choice, that people have a choice for natural resource management, and Edmund Leach has said they're the politics. And then Leslie White. What I'm saying, all these anthropological, Leslie White has mentioned about the energy consumption sources and the pattern. My dear friend, मेरा सिर्फ ये कहना था सुबह के 10-15 मिनट में, एंथ्रोपोलॉजिकल नॉलेज को अप्लाई करने के लिए वी हैव टू रिमेम्बर ऑल, और सभी में सिस्टमैटिकली अप्लाई. अभी मैं आपको क्विकली, तो मेरा ये पहला उद्देश्य था, my first objective was to tell you how anthropological theory are important for tribal development. This is one. Second thing I wanted to tell you, there's a difference between anthropological practitioner. They have to remember all the theory and apply in the field. Another thing I wanted to tell you, that each anthropological theory, या ध्यान दीजिए, each anthropological theory is interconnected. They form. किसी एक थ्योरी को पढ़ करके आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते. Now my friend, अभी मैं आप लोगों को ये जो मैंने बताया, हमारा दूसरा मुद्दा था
डिजिटल एथनोग्राफी। हम कलकत्ते में बैठे, आई एम सिटिंग इन कोलकाता, many of you are in different parts of the country. Can a student of anthropology verify all these ethnographic points while sitting at far distant places? So the first part of my discussion was to tell you that when you go for the tribal development, we have to approach for meeting their physiological need, and what are the social institutions, what are the cultural practices, and then lastly why, what are the energy consumption being done. आपका ये प्रश्न होगा, ये तो थ्योरी में पढ़ा देखा, इसको अप्लाई कैसे करेंगे और डिजिटली कैसे अप्लाई करेंगे? एंथ्रोपोलॉजी का मैंने कहा था, आई हैड टोल्ड दैट आई विल बी टॉकिंग टू पार्टिसिपेटरी रिसर्च के लिए, पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च, और दूसरा है एथनोग्राफी। आप लोगों ने ये शब्द सुना होगा, एथनोग्राफी, है ना? सुना होगा एथनोग्राफी। यस सर। और फिर एक नई बात कहें, आपके लिए ये भी एक नई बात होगी। पहली बात तो आप याद रखेंगे कि ट्राइबल डेवलपमेंट को या किसी भी मानव विकास के लिए अगर हम डेवलपमेंट के लिए जाते हैं तो फूड फर्स्ट, यानी उनके सर्वाइवल के लिए व्हाट आर द फिजियोलॉजिकल नीड, हवा, पानी, खाना, ये अगर है तो किताब पढ़ेंगे और चश्मा पहनेंगे और मोबाइल लेके बात करेंगे, लेकिन खाना ही नहीं है, पानी दूषित है, हवा दूषित है, मिट्टी में जहर भर गया और पेड़ों में फल नहीं है, करेंगे मोबाइल लेकर के। सो फूड फर्स्ट। और ये जो मैं कह रहा हूं, एज ए स्टूडेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, आई एम श्योर यू मस्ट बी नोइंग, किसी भी डेवलपमेंट का, ह्यूमन डेवलपमेंट का, देयर आर 3 yardstick. Hope you remember, if you go for human development, international definition, समय कम है, you know, human development के लिए what is the knowledge for what? For their resource or health, and education for resource. So human development index के लिए the 3, the knowledge, health and the resource. तो health कैसे देखेंगे अगर खाना ही नहीं रहेगा? एजुकेशन का क्या होगा पीएचडी करके जबकि पीने का पानी नहीं रहेगा? विश्व में किसी भी आदिवासी या गैर आदिवासी का डेवलपमेंट का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से, HDI। उसमें 3 चीजें, आदिवासी यहां डेवलपमेंट करने जाएंगे और आपने पहले से अच्छा किया है तो 3 चीजों का लोग मूल्यांकन करेंगे। उनका हेल्थ देखेंगे, पहले से इंप्रूव हुआ है, और उस हेल्थ को ठीक रखने के लिए, आई रिपीट, उस हेल्थ को ठीक रखने के लिए फूड और रिसोर्स के लिए उनके पास क्या नॉलेज है। अगर नॉलेज है तो उनके पास क्या रिसोर्स है, यानी रिसोर्स, नॉलेज और हेल्थ, ये 3 मिलाकर के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI कहलाता है। तो ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए भी आप जब जाएंगे और आपने कुछ दिन तक काम किया है तो लोग मूल्यांकन करेंगे कि आपके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को नबे हुआ है क्या। सो माय डियर फ्रेंड, ये मैं नहीं कह रहा हूं, वैद साहब नहीं कह रहे हैं, कोई एंथ्रोपोलॉजिस्ट नहीं कहा, ये इंटरनेशनल डेफिनेशन है। हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट के विद्यार्थियों को जानना चाहिए कि ट्राइबल डेवलपमेंट में जा रहे हैं तो उनका ह्यूमन डेवलपमेंट HDI कैसा है। यानी HDI का मतलब एक त्रिकोण, याद रहेगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक त्रिकोण,
तीन पहलू, हेल्थ, नॉलेज एंड रिसोर्स। नाउ कमिंग बैक, तो यह ह्यूमन को जानने के लिए हम गांव में जाएंगे तो एथनोग्राफिक एक मेथड है, यदि एंथ्रोपोलॉजी का, चूंकि यह एंथ्रोपोलॉजी का चर्चा था, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, तो आई एम श्योर यू विल रिमेम्बर कि एंथ्रोपोलॉजिकल नॉलेज करने के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जानना जरूरी है विकास शुरू करने से पहले, और विकास के बाद में लोग देखेंगे उनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बढ़ा है क्या। एथनोग्राफी, एथनोग्राफी में चार पहलू, क्विकली मैं बोलूं, समय कम है, अब ध्यान से नोट करें, मैं आपसे पूछूंगा। एथनोग्राफी में चार पहलू, अंडरस्टैंडिंग द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड द कल्चर ऑफ द, दो चीज हुआ, अंडरस्टैंडिंग द कल्चर ऑफ द पीपल, कहां पर, उनके नेचुरल एनवायरनमेंट, एंड देन हाउ दे cope with the situation and co-adaptation. तो एथनोग्राफी में हमें we have to study the people and their culture. I repeat, we have to study the people and their culture. कहां पर, in their natural environment. और क्या देखेंगे, how they are coping with the environment for survival. और लास्ट पार्ट क्या, co-adaptation. ये शायद मैं पहली बार से आप सुन रहे हैं, एथनोग्राफी में ये 4 पॉइंट में एक भी मुद्दा कम हुआ ना, वो एथनोग्राफी नहीं कहलाएगा। लिखने को तो कोई कुछ भी लिख दे, स्टडी ऑफ द पीपल कल्चर इन देयर, कहां पर, उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में। वाई नेचुरल एनवायरनमेंट में, क्योंकि आप उनके नेचुरल एनवायरनमेंट देखते हैं, उनका उठना बैठना, मटेरियल कल्चर देखते हैं, है ना, उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में। अगर एसबी राव का नेचुरल एनवायरनमेंट देखना है तो इस घर में देखेंगे। ट्राइबल की स्टडी एथनोग्राफी करनी है, और एक ट्राइबल विद्यार्थी आपके दिल्ली स्कूल में पढ़ रहा है, और उस ट्राइबल को दिल्ली स्कूल में उसके हॉस्टल में जाके उसका इंटरव्यू लेंगे, तो क्या ये एथनोग्राफी कहलाएगा? अरे जल्दी से बोलिए ना, हाँ या ना, एथनोग्राफी होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि ट्राइबल का हमको स्टडी करना है तो ट्राइबल के नेचुरल एनवायरनमेंट में करना पड़ेगा एथनोग्राफी। और नेचुरल एनवायरनमेंट क्यों, कमिंग टू एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी, उनका फिजियोलॉजिकल नीड के लिए नेचुरल एनवायरनमेंट कैसा है, उनका घर कैसा है, उनके जानवर कैसे है, उस परिवेश में कैसा है, तब हम रिलेट कर पाएंगे। सो लेट मी कनेक्ट विथ यू विथ some village of tribal. I'll try. Vijay, I have told one of my friend from Odisha, Vijay Raut. विजय जरा कनेक्ट करोगे? ये उड़ीसा में देखिए एक, नमस्ते सर। नमस्ते, लोधा आदिवासी है, नहीं सॉरी, कौन से गांव में हो विजय? जामपदा गांव में हूँ सर, सांथल का कम्युनिटी है वहाँ। संथाल, ओके, संथाल जामपदा में। ये देखिए, एथनोग्राफी में मैंने कहा था 4 चीज याद रहेगा बंधु। पहला, स्टडी ऑफ द कल्चर, कहां पर, कमान से विथ मी, कहां पर, नेचुरल एनवायरनमेंट, इंडियन नेचुरल एनवायरनमेंट। हाँ, नेचुरल एनवायरनमेंट क्यों? क्योंकि आप देख पाएंगे उसकी मिट्टी कैसी है, उसका पेड़ कैसा है, उसका घर कैसा है, उसके पास जो वो बर्तन है, बर्तन से आप उसका इकोनॉमिक स्टेटस समझ पाएंगे, है ना। तो विजय जी सर। जरा वहां देखिए, ये बर्तन है, आप देख रहे हैं ना। यस सर। ये मिट्टी का बर्तन, ये ट्रेडिशन, उसके ऊपर स्टील की थाली, यह जो आपने नेचुरल एनवायरनमेंट में देखा, यानी स्टील की थाली के लिए जरूर कोई मार्केट में होगा,
एक एक आइटम को देख करके मटेरियल कल्चर से आप रिप्रेजेंटेशन करते हैं। एंथ्रोपोलॉजी में मटेरियल कल्चर, विजय रुको रुको, इनका घर देखिए। इस घर को देख करके एज एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट आप कितनी सारी बातें कह सकते हैं। एक मिनट विजय रुको, इसको देखिए। हम लोगों को मटेरियल कल्चर पढ़ाया जाता है, बड़े खुश होकर हम फोटो ले लेते हैं, है ना। मटेरियल कल्चर का इंटरप्रिटेशन, इसकी छावनी को देखो, लुक एट द थैट, दैट मींस some paddy around, and the pole and the painting, and look at the tidy, बैठने की जगह कितनी साफ है। So as a student of anthropology, we can describe many more things about the knowledge. You remember college culture का belief system of the knowledge and tradition which come as a moral. ठीक है, तो आप लोगों में से जरा इनसे कोई बात करेंगे कि इनकी जीविका के लिए ये लोग क्या करते हैं। जी Talk to सर। them. कोई बात करें इनसे। और नमस्ते सर। नमः जोहार जोहार। देखिए तुम्हारा नाम? आपको बताया था एंथ्रोपोलॉजिकल एप्लीकेशन ऑफ डेवलपमेंट में पहला थ्योरी किसका? मैलिनोस्की। What about how they meet their physiological need? That means रोटी कपड़ा और मकान, है ना। तो उनसे पहले पूछिए जरा, कोई बात करेंगे आज इनके जीविका के लिए, इनके जीने के लिए, लाइवलीहुड के लिए क्या करते हैं, क्या प्रश्न पूछेंगे। योर क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, क्या पूछेंगे? So the question related to their economic sources, how they are earning their daily well-being. So only after that पूछिए we पूछिए। मैम, भाई आपका डेली का मैलिनोस्की ने इनकम। कहा, स्टूडेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, मैलिनोस्की ने कहा हाउ दे आर मीटिंग फिजियोलॉजिकल नीड फर्स्ट। और आप तो इकोनॉमी में चली गई। सर फिजियोलॉजिकल नीड्स जो है सर इकोनॉमिक नीड पे, इकोनॉमिक सोर्सेज पे डिपेंड करता है। तो जितनी कमाई होगी उतना ही तो मतलब उसी के अकॉर्डिंग ही सर डाइट होती है। हाँ, जितनी कमाई होगी वो तो कमा के लाते हैं, लेकिन वहां पर खाने के लिए वो बंबई से आया है कमा करके, ठीक है। और यहाँ पर जो है खाने के लिए जंगल खत्म हो गया है, पेड़ का पानी नहीं है, तालाब सूख गया है। इकोनॉमी क्या है, मैं क्विकली बताऊंगा आपको। देखिए एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी को काफी लोगों ने बहुत अच्छी तरह से सजाया है। एक तो मैंने कहा एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी के आधार पर HDI, याद है ना आपको, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI। यस। उसमें कितने पहलू बताया मैंने? 1 2 3 4 5 कितने? 3 बताए। वाह, हेल्थ, नॉलेज और रिसोर्स। वाह, वंडरफुल। तो किसी भी विकास के लिए पहले हम इसको मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। और एक चीज सुनिए, ये एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी के बेस पर DFID का, मैडम आपने जो लाइवलीहुड की बात कहा, लाइवलीहुड फ्रेमवर्क है। आप क्विकली जल्दी से लिख लीजिए, लाइवलीहुड फ्रेमवर्क है। और आप गूगल्स में अगर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा लाइवलीहुड फ्रेमवर्क। लाइवलीहुड फ्रेमवर्क में सारा एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी, लेकिन नाम दे दिया ब्रिटिश काउंसिल का, ब्रिटिश DFID ने, लाइवलीहुड फ्रेमवर्क। द फर्स्ट इज ऑन द ह्यूमन, जो ट्रस्ट है, रिलेशनशिप है, सोशल कैपिटल। सेकंड ह्यूमन कैपिटल, the natural environment, natural capital. What finance they have got, financial capital. And what market infrastructure they have got, infrastructure capital. ये 5 कैपिटल मिला करके लाइवलीहुड का है। Anyway, तो एज ए स्टूडेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, लाइवलीहुड फ्रेमवर्क इन सारे थ्योरी में है। हाँ विजय, जरा इनसे बताओ, ये इनका खाने के लिए सब्जी या खेती
या पानी इनका सब्जी करते हैं कुछ? तुमे कुछ चाष करुच खेती बाड़ी? हाँ चाष करछि। कौन कौन चाष करछ? चाष करुचे धान चाष करथिले धान चाष करके अमल करले मेसिन रे पेटी देकी धान रखी देइछि। एबे तो जा परिबा चाष करछि बांगण जा कुसला साग। और कुछ खेती करते हैं राइस पेडी का और कुछ सब्जी का, सब्जी उगालता है वो लोग। और कुछ जंगल से कुछ खाना भी ये लेके आते हैं, जैसे दाल साग जातीय और मशरूम सीजन बेसिकली मशरूम ऐसे वो लेके आते हैं जंगल से भी, वो कुछ खाते हैं। माय डियर फ्रेंड बैद जी, ये जो अभी हम दिखा रहे हैं हमारा उद्देश्य था क्या डिजिटल एथनोग्राफी के माध्यम से हम एथनोग्राफिक स्टडी कर सकते हैं। तो यह एक मैं सैंपल आपको दिखा रहा हूं कि अगर आपके पास मेथोडोलॉजी क्लियर है, गांव में इन्फॉर्मेंट से कांटेक्ट है, कैसे एथनोग्राफी यानी उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में उनकी कल्चर के बारे में स्टडी कर सकते हैं। यह हमारा दिखाने का उद्देश्य था। उड़ीसा का प्रतिमा, आर यू देयर? ये सर ब्रिंजल का खेती किए हैं और मूली साग किए थे, वो खा दिया है, लेकिन अभी ब्रिंजल है वो। Yes, you were asking for me? हाँ, can you talk to Yeah, Shukhalata is here. She's here. हाँ, okay, all right. देखिए दोस्तों, मेरा उद्देश्य ये था, पहला तो एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी जो है इंटरडिपेंडेंस इंटरकनेक्टेड है बताने का। दूसरा पर्पस था कि लाइवलीहुड के लिए ट्राइबल डेवलपमेंट का हम अगर स्टडी करना चाहें तो ये क्या डिजिटल एथनोग्राफी से कुछ संभव है क्या? आप बताइए, जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो जहां बैठे हैं, अगर हमारे पास एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी स्पष्ट है तो क्या हम गांव देख सकते हैं? और गांव देखने का मतलब उनके मकान कैसे हैं, उनकी मिट्टी कैसी है, पेड़ कितने घने हैं, क्या सब्जी लगाया है, पानी और खेत में कितनी दूरी है, सिंचाई कैसे करते हैं, इसमें मछली पालन कर सकते हैं क्या? तो आप दिल्ली बैठ करके किसी एक गांव का, गांव वालों से बात करके लाइवलीहुड, जीविका, आई रिपीट, जीविका, खाने का, भोजन, खाना ठीक रहेगा तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और दोस्तों, आई एम 82 प्लस, एक मजे की बात कहे, इकोनॉमी अच्छी होगी तो स्वास्थ्य अच्छा होगा, ये गलत धारणा है। पैसा होगा तो डायबिटीज नहीं होगी, ये गलत धारणा है। पैसा होने से हेल्दी होंगे, ये गलत धारणा है। हेल्थ के लिए जो फैक्टर है वो अलग है। इकोनॉमी इज वन पार्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन। इकोनॉमी इज वन पार्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन। तो Shukhalata, would you like to talk to Shukhalata? कनेक्ट करते बोल। না না, ও তো কানেক্ট করে আছে, শি ইজ ইন দ্য লাইন। ओके, लेट हर टॉक। সুখলতা, একটু ভিডিওটা অন করো। अब देखिए, मैं आपको, ये तो आपने उड़ीसा का देखा संथाल, अब हम बंगाल के संथाल को दिखाते हैं। तो जो लोग एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट हैं, হ্যাঁ, একটু ভিডিওটা অন করো তোমার। হ্যাঁ হ্যাঁ हेलो सुखलता। হ্যাঁ মা, হ্যাঁ স্যার, ভালো আছেন? হ্যাঁ ভালো আছি। आप लोगों में से कोई बंगला समझता है? सर थोड़ा बहुत समझ जाते।
समझ जा ज्यादा बोलते हो। अच्छा थोड़ा थोड़ा देखिए वैद जी, ये कंपेरेटिव स्टडी संथाल ऑफ उड़ीसा का घर देखा और संथाल ऑफ बंगाल, और वो भी डिजिटल टेक्नोलॉजी से। तुम्हारे एक घर बाड़ी देखाबे सुखलता, मैं उनको कह रहा हूँ अपना घर जरा दिखाएंगे। हाँ देखिए अगर आपका एंथ्रोपोलॉजिकल नॉलेज और आंखें तैयार है, इसका छप्पर देखे, रूफ वहां देखा था आपने, एक घरे देयाल देखा बे, देयाल वहां भी हाँ पेंटिंग सर, देखा था। यही तो। ये देखिए, आप दोनों पेंटिंग को देख करके राघव, कैन यू से सम कंपैरेटिव स्टेटमेंट? ये दोनों के सर दे इसको आर देख मोर करके कल्चरली डेवलप्ड, ये भी संथाल है, वो यस भी संथाल है। बट देयर तो अक्सर हम एक्सपोजर लोग दे कहते आर हैं मोर दिस इज द कल्चर ऑफ संथाल। हाँ नहीं, और इस पेंटिंग को देख के इनका परसेप्शन, इनकी सोच क्या है? सर ये मोर ज्यादा उसमें है, पेंटिंग ड्राइंग आर्टिस्ट आर्टिस्टिक। उसमें है, आर्टिस्टिक नेचर है उनका कल्चर में। सर यहाँ पे घर ब्रिक्स के बने हुए हैं, मड के ही बने हुए हैं ये भी, ये आप जो इस पूछिए, देखिए तो खुद पूछिए ना। वहां तो उसका मड का बना हुआ था, ये ब्रिक्स का लग रहा है। पूछिए तो इनसे, बंगला हिंदी में पूछिए, बंगला में पूछिए। এটা ये মাটির ঘর না ইটের ঘর? মাটির মাটির ঘর এটা। मिट्टी का घर है। तो राघव देखा, वहां भी मिट्टी का घर, यहाँ भी मिट्टी का घर हाँ है ना? ये दोनों में दिया। फर्क यस सर, समझा? यस सर। Sir, what is the reason Sir, behind painting? use of Any utility? more colors in the painting shows that their exposure to the market is more than those Santhal tribe वाह, to ग्रेट like ग्रेट, ये हुई ना बात, Orissa. ये हुई बात। हाँ you know why I am showing all these things? What is the objective? Whether through digital technology you can study part of ethnography. I say not all, but part of ethnography. आपके पर्पस का काम निकल जाए। अगर आप इकोनॉमी स्टडी करते हैं या फूड हैबिट की करते हैं, नेचुरल हैबिट, ওগুলা ভালো মোবাইল দেখে দেখে ঘুরে বলছে। কি করবো? সুবর্ণতা, হ্যাঁ তোমাদের স্যার। এখানে কোনো শাক सब्जी কিছু কাছাকাছি আছে জীবিকার? मैंने पूछा उनको कि आपके साग सब्जी का या जीविका का कुछ है? आपने वहां भी देखा होगा साग सब्जी का। अच्छा ना, इनका देखा जाए। হ্যাঁ স্যার আছে। দেখাতে পারবে? দূরে আছে? দূরে বলতে আমরা গ্রামের মাঝখানটায় আছি, একটু গ্রামের থেকে একটু বেরোতে হবে। ठीक है, कि हेटे हेटे बेरो। ये बोले कि हाँ हाँ सब्जी तो है लेकिन थोड़ा दूर में है। हमने कहा ठीक है, थोड़ा पैदल चल के चलो, वहां पर चलो। तो सुमित, ऐसा लगता है हम लोग गांव में घूम रहे हैं। गांव का घर देखा तो खेत में जा रहे हैं तो समय लगेगा ना, হ্যাঁ तो স্যার पैदल चल रहे हैं। লাগবে, কিন্তু সামনেটাই আছে মানে ঘরের সাইডে। कह रहे ये नजदीक में एक है, उसको दिखा देते हैं। हमने चलो वही दिखा दो। गोयल एज इफ वी आर डूइंग फील्ड वर्क। देखिए इनकी सब्जी, Sir, आप दोनों diverse की type तुलना of कर सकते हैं। वहां भी agriculture. सब्जी बगीचा देखा, यहाँ भी सब्जी बगीचा देखा, है ना? Use टीचर of तुम हो या nets. चले गए? Sir, by looking at the টমেটো। आप बताइए दोनों की तुलना। sir, सर again they मुंबई are इनकी more culturally पॉपुलेशन developed हाँ, because I ठीक है, can जरा इनका see सब्जी का दिखाना, उड़ीसा the का use of इनका nets. सब्जी। ये और ज्यादा ऑर्गेनाइज लग रहे हैं सर, ज्यादा ऑर्गेनाइज हाँ लग रहे हैं, ज्यादा हाँ, लेवल पे, मतलब वैरायटी ऑफ सब्जियां ज्यादा है। और ग्रीनरी कितना है?
और डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी यस, है ना, डेंसिटी, डाइवर्सिटी भी ज्यादा है। डाइवर्सिटी। हाँ ठीक है, या पॉपुलेशन ज्यादा लग रही है उसमें, बंगाल वाले संथाल में। हाँ ठीक है। तो सर वो दीवार, वो जो वॉल है उसको वो लीप रही हैं, तो लाइक हाँ आई थिंक काउ डंग का हाँ यूज हाँ कर रहे हैं शायद। राइट, तो बिल्कुल बिल्कुल, हाँ 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 कंपैरेटिवली वो ज्यादा डेवलप है, और यहाँ ज्यादा ट्रेडिशनल लाइक पुराने वाला वही हाँ मेथड्स हाँ यूज कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। हम्म। সুখলতা, হ্যাঁ স্যার। তোমাদের আরো কেউ কাছাকাছি নেই না? কি সবজি বাড়ি? না না, সবজি আহ, বাড়ি কোনো ব্যক্তি, আছে স্যার, এখানে আছে আমার সাথে। है तो কথা বলো, ওদের সঙ্গে পরিচয় करो। এই তো। मैंने कहा सुखलता को तुम्हारे साथ और कोई है जरा बात करें। अब इनका इनका ड्रेस देखिए, तुम भाई दोनों हाँ एथनिक। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते है। हेलो सर। नमस्ते। देखिए हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं उड़ीसा का संथाल, बंगाल का संथाल, दोनों आपके सामने हैं, ठीक है। और एथनोग्राफी means study of the people and their culture in the natural environment, how they are adjusting and co-adaptation, how they co-adapt with the nature and the people around. So that was the ethnography, whether this is possible through digital study or not. This is হ্যাঁ 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 ঠিক আছে হ্যাঁ ঠিক আছে। सुखलता, हाँ सर। एक तो तुम्हें ठीक है, विजय हो गया, और तुम्हारा सीड बैंक क्या है कुछ उसमें? नेदा में है साहब, ये तो वहाँ गांव पे नहीं है, ये सीडबॉल जो किए थे, और जंगल में जो ब्लैंक फील्ड था वहां पर डाल दिया था। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है विजय। हाँ सुखलता, হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ বলছিলাম তোমরা কিভাবে संगठित हुए, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। कमिंग my dear friends, in the last 5 minutes I will tell you what is the approaches of tribal development, right? आपने बीच बीच में टुकड़ों टुकड़ों में चित्र देखा है, लेकिन अगर स्टेप बाय स्टेप मूव करना है तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा एंथ्रोपोलॉजी का, सेकंड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप क्या होगा। সুকলতা, হ্যাঁ স্যার। তুমি একটু বলবে তোমাদের গ্রুপে যখন তোমরা মিটিং করো কিভাবে বসো, किभाবে करो। मैंने सुखलता से पूछा कि आप लोग गांव में आदिवासियों की बैठक करते हैं तो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, एक तो बोलबे? হ্যাঁ স্যার, মানে আমরা প্রথমে গোল হয়ে বসি, তারপরে মাঝখানটায় ঘটির জল আম পল্লব দিই, তারপরে প্রার্থনাটা শুরু করি। एक मिनट एक मिनट एक मिनट दाঁড়াও। आप लोग ये बंगला समझते हैं इतना? मैंने पूछा कि आप लोग अपने गांव में बैठक करते हैं तो कैसे शुरू करते हैं, क्या करते हैं? सर पंचायत तो सिस्टम। सुखलता ने कहा कि हम लोग पहले गोलाकार में बैठते हैं, सर्किल में, और बीच में घोटी मतलब लोटा, लोटा में पानी पूजा करने के लिए रखते हैं, प्रार्थना करते हैं। This is one of the very very important thing of anthropological study. What kind of culture and belief are there, and they follow it. ये जो था मैलिनोस्की का कि फूड सिस्टम के लिए, फिजियोलॉजिकल नीड के लिए दे हैव सर्टेन इंस्टीट्यूशन। तो अगर हम समझते हैं कि वो परंपरा को निभाते हैं तो उनकी संपदा अच्छी होगी। अब हम देखें ये लोग कौन सी परंपरा को निभाते हैं, व्हाट ट्रेडिशन दे फॉलोइंग। संथाल ऑफ वेस्ट बंगाल,
and I ask you the belief system, culture. Do you remember मैंने जब पूछा था कि पांव छू के क्यों प्रणाम करते हैं, नाक छू कर क्यों नहीं, है ना? And Yes, the sir. answer was we keep on logical saying ऐसा नहीं तो ऐसा नहीं तो ऐसा नहीं तो ऐसा. Here she asked, हम लोग गोल बैठते हैं और बीच में लोटा रखते हैं, पूजा करते हैं. मैं इनसे पूछ, गोल रखकर क्यों बैठते हैं? सर टाइम की पानी चिंता रख, मत कर, नहीं नहीं, टाइम की पानी रखते हैं ना, जहाँ बैठते हैं पानी रखते हैं. रॉय सर, पानी टाइम की चिंता, पानी टाइम लोटा में क्यों रखते हैं, बाल्टी में क्यों नहीं रखते हैं? सर You know, टाइम की चिंता मत करिए. they can't टाइम की answer that because that is the culture, tradition. So how many people maintain the culture and tradition to keep the community in a cohesive group? ये है एंथ्रोपोलॉजिकल कल्चरल को मेंटेन करने का कोहेसिवनेस. तारपर की करोगो? मैंने पूछा फिर क्या करती हो? সুখলতা, সুখলতা আনমিউট করে নাও। ওই হ্যাঁ মিটিং এ প্রার্থনা করার পরে তারপর তোমরা কি করো সেইটা একটু বোঝাও। প্রার্থনাতে কি বলো? প্রার্থনাতে কি বলো সেইটা একটু বোঝাও। প্রার্থনাতে কি বলো? प्रार्थना करते हो, प्रार्थना में क्या कहते हो? ये जो प्रार्थना में क्या कहते हैं वो शब्द, उनकी भाषा, उनकी बोल जो है वह रिप्रेजेंट करेगा उनका कल्चर. लेट अस सी. बोलो বলো সুখলতা, তোমাদের প্রার্থনাটা একটু বলো। जोहार जोहार मारांग बुरु ओना माने लैया में नासेना। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, প্রথম থেকে প্রার্থনা বলবো? হ্যাঁ বলো. বলছি। जोहार जोहार मारांग प्रार्थना करिए. जोहार जोहार मारांग गुरु जोहार जाहे नायो आले नामने हो जोहार नातांग तालेबे आले नामने हो जोहार नातांग तालेबे जोहार जोहार मारांग गुरु जोहार जाहे नायो जोहार जोहार मारांग गुरु जोहार जाहे नायो बुगी बाड़ी रे दो नायो निक काले बे बुगी बाड़ी रे दो बाबा निक काले बे। একটু মানেটা বলে দাও বাংলায়। इसका माने क्या होता है? মানে মানে ভক্তি দিয়ে আমরা প্রার্থনা করি যে জোহার আয়ু জাহের আয়ু, মানে জাহের আয়ু, জাহের বাবা মানে আমাদের প্রকৃতি দেবতা। वो प्रकृति देवता की पूजा करते हैं. आदिवासी का कोई मूर्ति पूजा नहीं है. হ্যাঁ আমাদের खास देवते का पूजा है. हाँ, वो प्रकृति की पूजा करते हैं. हाँ, তারপরে তারপরে হচ্ছে স্যার, যদি আমাদের কোনো ভুল ত্রুটি থাকে প্রার্থনার মধ্যে কিংবা অন্য কিছু কোনো কিছু ভুল ত্রুটি থাকে তাহলে যেমন আমাদেরকে যেমন ক্ষমা করে দেয়। हाँ, और प्रकृति से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं अगर हमसे संरक्षण में कोई गलती हुई हो तो हमें माफ करना. ये देखो, ये जो प्रार्थना है, कल्चर है, ये इनकी फिलॉसफी है. ये रिफ्लेक्ट करता है एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी से कि उसके माने क्या है और कितने मन से प्रार्थना को आपने सुना, और वो जो पूजा करते हैं गोल बैठ के ऐसे करके रिचुअल को मेंटेन करना. रिचुअल ঠিক আছে গো, অনেক ধন্যবাদ. এবার তোমরা গ্রুপ ফর্ম কতজন আছে তোমাদের গ্রুপে? আর তোমাদের ভিডিসি তে কতজন আছে সুখলতা একটু বলো? 32 জন ছিল ম্যাম.
আপাতত, কিন্তু আবার এখন আবার মানে আসছে, ভিডিপিতে যুক্ত হচ্ছে। মানে এটা হলো জেনারেল বডিতে 32 জন আছে, আর আরো ये गांव বাড়ছে, में এখন आदिवासियों ভিডিসিতে ने আরো লোক 32 আসছে। 32 लोगों ने मिल करके ये लाइवलीहुड के लिए ये एक अपनी गांव का आदिवासियों की कमेटी है, 32 लोग हैं ডিসেম্বর মাসে ম্যাম অনেক और ज्यादा लोग अभी आ रहे हैं, जोड़ना और ज्यादा चाहते हैं उसमें और जुड़ है। रहे हैं, जुड़ रहे हैं। আর हाँ, এক্সিকিউটিভ কমিটিতে কতজন আছো? 32 জনের মধ্যে কজন আছে এক্সিকিউটিভ কমিটিতে? 32 জনের মধ্যে হ্যাঁ, তোমাদের যে ছোট কমিটিটায় কজন আছো, ম্যানেজিং কমিটিটায়? 3 জন। না, সেটা তো 3 জন, মানে প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি আর ট্রেজারার। আর আর ইয়ে, হ্যাঁ দুটো, একজন ইয়ে আছে। হুম, ঠিক আছে। ঠিক আছে, অনেক ধন্যবাদ, ভালো লাগলো, আর ভালো থাকবে, ম্যাম ধন্যবাদ। সবজি ঠিক আছে, বাড়িটা খুব সুন্দর হয়েছে। হ্যাঁ, তাই সবজি বাড়িটা দেখাবে, খুব সুন্দর। আচ্ছা, শি দেখাও। ওয়ান্টস টু শো সবজি বাড়ি, বলছে খুব সুন্দর ओ, হয়েছে, একটু वो দেখাতে। दिखाना चाहती, সরষে देखिए যেটা वो দেওয়া दिखाना হয়েছে, चाहती আচ্ছা, है দেখাও सब्जी দেখাও, बाड़ी में একটু उन लोगों ने একটু क्या किया দেখাও। है। হ্যাঁ, ও कि দেখাতে let us চাইছে see একটু। people who do some work, they want to show and they want to hear। ये देखिए इनकी सब्जी बाड़ी, সর্ষে, সবজি বাড়ি, তারপরে এটা সরষে বাড়ি। না, এটা সবজি সর্ষে, বাড়ি, এটা এটা সব সবজি শাক, বাড়ি। এটা শাক, সব শাক। তারপরে শাক, এই যে আচ্ছা, বিন আছে, কুমড়ো আছে, বাহ, बड़ा है, सब्जी है। তারপরে যেটা আমরা দিয়েছি সরষে, এগুলো দেওয়া সবজিগুলোই। তারপরে সরষে যেটা দেওয়া হয়েছে ওটা, ওই যে সর্ষে, হ্যাঁ সর্ষের হ্যাঁ, ফুল এসেছে। হ্যাঁ, বাহ, খুব সুন্দর হয়েছে सरसों का সর্ষেটা, फूल, हाँ। খুব সুন্দর লাগছে দেখতেও। খুব সুন্দর লাগছে। হ্যাঁ, আমারও ভালো লাগছে। আসবো वाह, আমরা দেখতে। आ रही है सरसों का फूल, सरसों की खेती में फ्लावर हुए हैं, देखिए वो সবজি दिखा रहे বাড়ি हैं, उनको खुशी हो रही है दिखा करके। और एक হ্যাঁ, चीज ध्यान হ্যাঁ, रखें कि खेत के पास সবজি में বাড়ি मेड़ পরিচর্যা पर बड़े बड़े पेड़ हैं, खेत के पास हम्म में बड़े बड़े पेड़ हैं, तो एग्रो बायोडाइवर्सिटी, ये इकोलॉजिकल सिस्टम। জল দেওয়া हम्म হচ্ছে। हाँ हाँ, খুব সুন্দর লাগছে। वाह, खूब कितना बढ़िया लग रहा है। हाँ हम्म ঠিক আছে, খুব ভালো লাগলো সুখলতা। হ্যাঁ हाँ है, হ্যাঁ, এবার ठीक তোমরা है, বেরোতে अनेक পারো। धन्यवाद। খুব ভালো है লাগলো, है অনেক অনেক है ধন্যবাদ। है, अभी निकल जा सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग कंक्लूड करेंगे এবার फ्रेंड्स। বেরোতে পারো সুখলতা, খুব ভালো লাগলো। खूब अनेक धन्यवाद ঠিক আছে। सुखलता। হ্যাঁ স্যার, हाँ, नाम भी कितना अच्छा है ना, सुखलता, सुख का, सुख की लता है ये। चलो, अच्छा दोस्तों, नाउ विल कंक्लूड। You know what was the purpose of this session? Application of anthropological knowledge for tribal development. So what was the anthropological knowledge? What is the uniqueness of this approach? Anthropological knowledge using Malinowski, that survival meeting physiological need. तो ट्राइबल डेवलपमेंट में उनका भोजन, फूड, हेल्थ, इसको पहले हम लोग देखेंगे। और मैलिनोस्की ने कहा दे हैव देयर सम ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो आपने देखा सुखलता ने कितना बढ़िया समझाया कि कैसे प्रेयर करते हैं, एथनोग्राफी कैसे करते हैं, और खेती कैसे करते हैं, और ग्रुप मेंबर। एंड देन इन्होंने बताया कि रेडक्लिफ ब्राउन ने कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं और कल्चरल प्रैक्टिसेस, एंड देन द स्ट्रॉस and the choice and the least about the political, finally Leslie White का ecological anthropology। तो ये अगर आपको practicing anthropology में जाना है तो all the theory used by you've done, this was my purpose on the Excel research। दूसरा मेरा purpose था whether it is possible to conduct ethnography study for tribal development। So this was approach of digital ethnography for tribal development. And the third part was comparative study. How Santhal of one will be different from Santhal of the other. So these are the some of the things I wanted to show.
I tell my dear friend, anthropology is a very rich subject, but ऊपर ऊपर पढ़ने से नहीं होगा. You have to understand, and each theory is interconnected. None of the theory could be understood in isolation. And this approach by Ebrard is known as socio-ecological approaches for sustainable tribal development. अगर आप गूगल्स में सर्च करें सोशियो, क्योंकि पहले सोशल ऑर्डर किया जाएगा, उसके बाद से इकोलॉजी, पेड़ पौधे होंगे, तब डेवलपमेंट की बात आएगी. सोशियो इकोलॉजिकल अप्रोचेस फॉर सस्टेनेबल ट्राइबल डेवलपमेंट. अगर आप गूगल्स में सर्च करें तो ये मिल जाएगा, पेपर भी, अप्रोचेस भी, मेथड भी. अगर आप गूगल्स में सर्च करें डिजिटल एथनोग्राफी फॉर ट्राइबल डेवलपमेंट, यू विल गेट पेपर जो हमने बताया डिजिटल एथनोग्राफी का. So this is what I wanted to tell. Anthropology is very rich subject, लेकिन anthropology पढ़ना पढ़ाना अप्रोच और application of anthropology for development दोनों में थोड़ा फर्क है. जस्ट लाइक एक डॉक्टर फिजियोलॉजी पढ़ा रहा है क्लासरूम में पीपीटी करके, और वही सर्जन जब ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी कर रहा है, तो सर्जरी करते समय सारे नॉलेज को फिजियोलॉजी का एक साथ रखना पड़ेगा. So this is what I wanted to share with you, my dear friend. Thank you very much, Baiji, for the opportunity discussing about the anthropological approaches for sustainable tribal development, and also demonstrating the possibility of digital ethnography. क्या यह संभव है? और बंगाल का जो दिखाया मैंने, यह इब्राड का एक प्रोजेक्ट है, अभी हाल में शुरू हुआ है, और उड़ीसा वाला अभी शुरू, इसको फिर से हम लोग करेंगे. एंड वी आर कवरिंग कितने गांव में ये सुखलता जैसे मेरे ख्याल से 20 गांव में नियरली 1500 फैमिली का स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूवमेंट ऑफ द हेल्थ, लाइवलीहुड, एजुकेशन, ये इंटर रिलेटेड है. और ह्यूमन डेवलपमेंट, लाइवलीहुड फ्रेमवर्क, ये जितनी थ्योरीज है सब एंथ्रोपोलॉजी से इमर्ज हुई हैं, लेकिन ये एंथ्रोपोलॉजी वाले उनको नहीं पढ़ाते हैं, मैनेजमेंट वाले पढ़ाते हैं, सेम एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी. बहुत अच्छा लगा, चर्चा हुई. मेरा उद्देश्य था कि आप लोगों को बताएं कि एप्लीकेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी फॉर डेवलपमेंट इज पॉसिबल. वहां पर ऑब्जर्वेशन के अलावा एक्सपेरिमेंटेशन भी करना पड़ेगा. अगर एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करेंगे तो डॉक्यूमेंट का विकास होगा, उनका इम्प्रूवमेंट नहीं होगा. So that was experimentation. Thank you. Well, thank you, sir. So nice of you. But if you want to continue, you can continue. Our system is 24/7, and it can accommodate up to 1,000 people also. अगर उनको पूछना है, that will have. But Dr. Lalit Kumar is also with us. I'll ask him first. But before that, जैसे आपने health के बारे में किया, I had an experiment in health, but it failed. We studied the Kamars of Chhattisgarh. अच्छा चल फिर मैं देख लूँगा. हाँ Lalit, just a minute, sir. We had the Kamars of Chhattisgarh. In 7 villages, we could find only 83 women between 15 and 45. In PBTG's iron deficiency is up to 80%. So what we did with the support of Pandit Ravi Shankar Shukla University head, Pradhan ji, Ashok Pradhan, and 2 of his scholars, हमने पहले उनके बॉडी मेजरमेंट, कुछ सर्कमफ्रेंसेस और कुछ स्किन फोल्ड एंड हाइट एंड वेट एंड हीमोग्लोबिन. Then after a month, we again took the measurements, लेकिन साथ ही हमने उनसे एल्युमिनियम के बर्तन ले लिए, उनको लोहे की कढ़ाई और कड़छी जो है वो उनको दे दी. मेरे हिसाब से a major poisonous thing is एल्युमिनियम थिंग, जो सरकार को सोचना चाहिए पर सरकार नहीं सोचती. And then after a month again we took measurements, and then after that we had decided, actually नंगे पैर चलते हैं वो, wombs enter through the feet. तो हमने सोचा कि उनको चप्पल दी जाए. अगर प्लास्टिक की चप्पल होगी तो वो फिसल जाएंगी, और रबर की होगी
तो वोम्स अगेन कैन एंटर। हमने सोचा कि इधर ही प्लास्टिक है। हाँ, जो हमको रबर नीचे में लगा दिया। वी ऑर्डर्ड फॉर दैट। मीनवाइल मानसून आ गया और उनका डाइटरी पैटर्न चेंज हो गया, तो प्रोजेक्ट वी कुड नॉट कंटिन्यू। बट इफ एनीबडी कैन डू, इट विल बी वर्थ फॉर फोर ऑफ द ट्राइबल्स, यू कैन से, इवन अदरवाइज विलेज पीपल आल्सो। खैर मैं तो करता ही रहूंगा। अब डॉक्टर ललित इज विद अस, लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ अप्लाइड एंड एक्शन रिसर्च एंड थ्रू द Ministry of Planning Commission. He retired as advisor to Ministry of Planning Commission. तो ललित भाई, आपके कमेंट्स इम्पोर्टेंट हैं। हाँ, थैंक यू वैद जी, आपने बहुत ये अच्छा किया कि भगवान दा को बुलाया, क्योंकि बहुत से लोग हमारे थियोरेटिकल बातें करते हैं। ही इज ए प्रैक्टिशनर, उन्होंने करके दिखाया। और भगवान दा बहुत बहुत अच्छा लगा सुनकर, और आज हमने भी बहुत कुछ सीखा आपसे। और ये कॉशनरी नोट दे रहे हैं कि एथनोग्राफी डिजिटली कर सकते हैं, और बहुत अच्छा सक्सेसफुल करके दिखाया। लेकिन ये 100% नहीं है, क्योंकि कई लोग बड़ा रिजिड स्टैंड लेते हैं हमारी एंथ्रोपोलॉजी में। नहीं नहीं, डिजिटल हो ही नहीं सकता, कुछ बिल्कुल हो सकता है, ऐसा नहीं है। इट्स नाइदर व्हाइट नॉट ब्लैक, सो सिचुएशन ग्रे है। तो इन्होंने ये सब जो है कैविएट लगा के बहुत अच्छी तरह आप सबको समझाया। जो कैंडिडेट्स हैं थ्योरी में भी आपको इसका फायदा मिलेगा, और जब आप इंटरव्यू देंगे तब भी आपको इसका फायदा मिलेगा, बिकॉज नाउ यू हैव सीन एक्चुअली ग्राउंड पे क्या बात होती है, कैसे होती है। तो ये सब जो आज दिखाया बहुत अच्छा लगा, और इसके लिए वैद जी का भी ऑर्गेनाइज करने का ये जो था बहुत अच्छा रहा। इसको आप हर बार ऐसे करें, और लिंक हमको पहले भेज दें। अभी लिंक थोड़ा देर से मिला, ज्वाइन किया, पर फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। जितना मैंने सुना मजा आ गया, और लग रहा था भगवान दा अभी थोड़ा और बोलें, हमें और बातें बताएं। इतना एक्सपीरियंस है आपका। चाह तो मैं भी और रहा। मुझे लगता है एक राउंड इनका और होना चाहिए वैद जी, एक राउंड और होना चाहिए। अगला और बड़ा सारा काम है इनका, है ना। हाँ, तो आज बहुत अच्छा रहा, मेरे को लगता है स्टूडेंट्स को भी मजा आया होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे ये मौका मिला सुनने का। थैंक यू सो मच। इम्पोर्टेंट थिंग इज ऑनेस्टली ही डिजिटल मैं एक चीज एथनोग्राफी जोड़ जो दूं। है कैन नॉट कवर एवरीथिंग। ठीक है, मटेरियल कल्चर वी कैन अंडरस्टैंड, राइट। एथिक हो सकता है, एमिक तो खैर नहीं ही हो सकता, but still he is a pioneer and he has shown that yes, it works. It works demonstrated. Sir, मैं बताऊं आपको, हमें एंथ्रोपोलॉजी के लिए बड़े गर्व की बात है। आई कैन पुट ऑन रिकॉर्ड ऑल्सो, रिकॉर्डिंग हो रही है। 75 years of the birth life of IIT खड़गपुर। तो प्लेटिनम जुबली मनाई जा रही है जनवरी में। 17-18 जनवरी को कलकत्ता में कॉन्क्लेव होगा, जहाँ के बहुत सारे कॉरपोरेट IIT एलुमनी और सारे IIT असेंबल हो रहे हैं। 2 दिन का कॉन्क्लेव। उस कॉन्क्लेव में जो मैं कहना चाहूंगा, हमारे लिए गर्व की बात है, एंथ्रोपोलॉजिकल एंड सोशल अप्रोचेस क्या हो गए टेक्नोलॉजी के साथ में, उसकी एक चर्चा है। सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट एक पैनल, और एक पैनल है ट्राइबल डेवलपमेंट। और बड़ी खुशी की बात है कि आई एम इनवाइटेड एज वन ऑफ द पैनलिस्ट उसमें 75 years ऑफ प्लैटिनम जुबली में अप्रोचेस। वो जानते हैं क्यों, जो मिनिस्ट्री भी कहती है, उनका भी कहना है कि हम ये नहीं सुनना चाहते हैं कि क्या क्या होना चाहिए, ये बताइए स्टेप बाय स्टेप हाउ टू रिच। इसका नाम दिया है लास्ट माइल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू। IIT आपको टेक्नोलॉजी देगा, आप बताइए क्या टेक्नोलॉजी चाहिए। You social scientists have to reach last mile to demonstrate development. ये बहुत कठिन काम है, reaching last mile transformation for good. बता रहे थे ललित भाई, सेशन हमारा हम लोग रख सकते हैं। अभी जो नया शुरू स्टार्ट करेगा, सेशन ऑफ AI
So Lalit sir, you can tell about our experience with the corporates just before हाँ, COVID. ये ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, वो उससे पहले मैं कहूंगा कि जैसे हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल, जो बड़ी फेमस किताब रही है डेल कार्नेगी की, उसी तरह कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को इम्प्रेस किया है। भगवान दा ने जैसे आईआईटी खड़गपुर किया, तो उससे क्या है कि ये सब्जेक्ट की रीच और इसकी एप्रिसिएशन बड़े अच्छे लोगों के पास पहुंचती है। तो ये कंट्रीब्यूशन आपका सर याद रखा जाएगा। जैसे कि माधव गाडगिल जी को इरावती कर्वे एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने इन्फ्लुएंस किया, उससे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में एंथ्रोपोलॉजी पहुंचा, आईआईटी में पहुंचा। और वैद साहब इतने होशियार बच्चे जो इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट करके आ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको इन्फ्लुएंस करते हो। तो ये एक कंट्रीब्यूशन जो है ये बहुत बड़ा है। जहां तक कॉर्पोरेट से मेरा इंटरेक्शन है, गवर्नमेंट में लास्ट में जब मैं था तो सीएसआर के ये रूल्स बन रहे थे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के। 2013 में मैंने मीटिंग किया इस पे, और उसके बाद मैंने 1 साल के बाद सुलभ इंटरनेशनल ज्वाइन किया। वहां पे मेरा काम था सीएसआर की मीटिंग्स अटेंड करना, और सीएसआर कैसे इवॉल्व हुआ उसको मैंने वॉच किया। तो जो कॉर्पोरेट एंथ्रोपोलॉजी है, बिजनेस एंथ्रोपोलॉजी है, ये भी अपने में एक सब्जेक्ट है। तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो सिलेबस जो है सिविल सर्विस का, शायद उसमें उसका इतना नहीं है, पार्ट नहीं है, बट इफ दे रीड अ लिटिल बिट ऑफ दैट पार्ट, कॉर्पोरेट एंथ्रोपोलॉजी, बिजनेस एंथ्रोपोलॉजी, तो उसमें बहुत लिटरेचर है। तो इसके जो आंसर्स हैं उसमें वो उसका भी थोड़ा सा टच देंगे, तो इनके आंसर्स जो हैं एग्जाम में और भी अच्छे हो जाएंगे। तो ये सब एक्सपोजर जितना वैद साहब आपको दिला रहे हैं, ऐसे ऐसे सीनियर जिन्होंने जिंदगी बिता दी, भगवान दा जैसे, तो इनसे आपका जो है नॉलेज भी बढ़ रहा है और जिंदगी में ये बातें काम आएंगी। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं फिलहाल तो इतना ही कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। ओवर टू। अच्छा, भगवान दा को लिंक मिलने में थोड़ी देर हो रही थी। वी स्टार्टेड अवर सेशन एंड वी हैड 1 मिनट का मौन माधव गाडगिल सर के लिए बिफोर वी प्रोसीडेड। वेरी नाइस। मैं ये कहना चाहूंगा, जो आपके विद्यार्थी या पार्टिसिपेंट सुन रहे हैं, वो सिर्फ एंथ्रोपोलॉजी नहीं, किसी भी डेवलपमेंट फील्ड में जाना चाहते हैं, डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर, बिकॉज आईआईटी इज लुकिंग फॉर सोशल साइंटिस्ट जो कि रूरल डेवलपमेंट में काम करें, और सिर्फ थ्योरी नहीं, थ्योरी को अप्लाई करना, एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी का विकास करके दिखाइए, जो आज मैंने दिखाया बेस लाइन से। तो ये भी एक वैद जी, एक अलग आपका प्रोफेशन, एक करिकुलम हो सकता है डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर के लिए, कि जो एक नई फील्ड में जाना चाहे। जैसे माइका मैनेजमेंट का, मैं माइका अहमदाबाद पढ़ाता हूँ, आईआईटी में, खड़गपुर में भी, और भी मैनेजमेंट में। तो जो एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट हैं, वो एंथ्रोपोलॉजी में सिविल सर्विस कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर जो डेवलपमेंट फील्ड में भी काम करना चाहते हैं, प्रैक्टिसिंग, उनके लिए आप अलग का करिकुलम बना सकते हैं, जिसको हम ऑनलाइन ही नहीं, जो जहां पर है फील्ड वर्क भी करा सकते हैं, और यू विल गेट अपॉर्चुनिटी ऑफ राइटिंग केस स्टडी। तो आपके सीवी में ऐड होगा। अगर आप डिजिटली भी कोई केस स्टडी बनाते हैं, इट विल ऐड टू योर करिकुलम। तो किसी हमारे कई जॉब में अप्लाई करेंगे, जो ललित ने कहा। हाँ हाँ, पर आपका तो जो फॉरेस्टर्स को समझा देना एंथ्रोपोलॉजी, मेरे ख्याल से मेरे बस की बात तो नहीं होती। आप हर साल जितने फॉरेस्ट वालों को समझा देते हैं, डीएफओस को एंड फॉरेस्टर्स को, दैट इज वेरी टफ जॉब सर। उनका माइंडसेट बना हुआ है कि जंगल हमारी प्रॉपर्टी है। तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी हुई। अगर आप लोगों को क्वेश्चन हो या कुछ कमेंट हो। हाँ, अभिषेक पूछो। Sir, good afternoon, sir. My name is Abhishek Kumar. Sir, I have 2 questions. And my first question is, sir, you have done digital ethnography. So, sir, my first question is, what is the ethical challenges in the digital ethnography regarding consent, privacy, and anonymity? Just like, sir, when you have dictated that you are informant that saw the videos, then without consent
he showed that people videos. So, sir, I have concerned that it's not the violation of privacy or anonymity. So, sir, how you see the ethical challenges? My first question. Sir. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये प्राय सोशियोलॉजिस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट पूछते हैं। ये तो जिस गांव में काम हो रहा है, गांव वालों के इनविटेशन से ये काम हो रहा है, और जिनको लिंक भेजा गया वो कह करके कि आप जो काम कर रहे हैं आपको ध्यान होगा, वो उन्होंने कहा हमें आपको और दिखाते हैं, आप आइए, ये देखिए कैसा लग रहा है, ये सुनिए। आपने गौर किया? जिन्होंने काम किया है वो काम अपना दिखाने के लिए कितने उत्सुक हैं, और उनका नाम और गांव का नाम इज वेरी क्लियर। तो हम कहें ना कहें, वो तो रिपोर्ट में निकलता है, एनुअल रिपोर्ट में भी निकलता है। इसमें अनएथिकल क्या है जरा बताइए। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, प्राय लोग पूछते हैं इसमें अनएथिकल क्या है। No, sir. हाँ बताइए, अनएथिकल क्या है? Yes, sir. My only concern is you have said the informant. Okay, it's clear that the informant has already known that I have to show the video. But sir, other person, my concern is other persons. His camera is shown that other person. Then yes, sir, consent of other persons. Like sir, we have seen many persons, like 10 persons or 12 persons. All persons have their consent. नहीं, अगर दिखाया तो इसमें अनएथिकल क्या है बताइए। प्राइवेसी कंसर्न। व्हाट इज अनएथिकल? प्राइवेसी कंसर्न्स, consent or sir without asking, showing their what kind of privacy is there? नहीं मजे की बात है, नहीं अच्छी बात है। what kind of, उस गांव में सब्जी हो रही है, खेती हो रही है और लोग देख रहे हैं, इसमें प्राइवेट क्या, कॉन्फिडेंशियल क्या है? Who does not know about it? दूसरा क्वेश्चन पूछो। Okay, sir. Who does not know about it? Sir, I have 2 questions. May I ask? नहीं, एक मिनट। अनएथिकल कब होगा? अगर उनका कोई नॉलेज जो उनका है, उस नॉलेज को हम ले करके अपने नाम से कॉमर्शियल यूज करें और वो शेयर नहीं करें, वो अनएथिकल होगा। तो हम लोगों को सोचना है पहले व्हाट इज एथिकल, व्हाट इज अनएथिकल, और ये हम डिसाइड नहीं करेंगे, इट इज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड व्हाट इज अनएथिकल। हाँ जी, ठीक है। सर, माय सेकंड क्वेश्चन इज सर, does digital ethnography study a new kind of culture or only a digital extension of existing social reality? हाँ जरूर, एग्जिस्टिंग एथनोग्राफी का ही तो एक्सटेंशन है। Okay. और हम बताएं, एथनोग्राफी में जो मैंने 4 कंपोनेंट कहा, स्टडी ऑफ द पीपल कल्चर नंबर 1, नेचुरल एनवायरनमेंट नंबर 2, हाउ दे आर एडजस्टिंग कोलैबोरेशन नंबर 3, एंड को-एडप्टिंग। ये चारों होगा तो वो एथनोग्राफी कहलाएगा, नहीं तो एथनोग्राफी नहीं कहलाएगा। लेकिन फिर मैं कहता हूं, लेकिन एनीथिंग यू प्रिंट and call it is ethnography, so world doesn't matter, कोई उसके लिए मापदंड नहीं है, ये एथनोग्राफी नहीं है, जिसकी जो मन में आए छाप दे। so ethnography or anthropological theory is so loosely used, I say so loosely used, without any kind of standard. That is why this term ethnography or social studies are moving without any standard. People do not care for it. People don't worry आपका चारों पॉइंट है या नहीं है, वर्ल्ड डज नॉट मैटर। आप कुछ भी लिख दीजिए, कोई एक केस स्टडी लिख दीजिए एथनोग्राफी है, हाँ हाँ होगा एथनोग्राफी, हाँ ये होगा। कोई ये नहीं कहेगा एथनोग्राफी है या नहीं है। आपने कभी सुना है ये इन्होंने किताब लिखा है एथनोग्राफी, लेकिन इसमें ये 4 पॉइंट नहीं है तो एथनोग्राफी नहीं है?
Tell me one example in the world. You cannot show. This is because of our loosely using the term. I'll give you some topics of there was a seminar in the US. Why the world needs anthropologists. उसको पढ़ के समझ में आ जाए. Next, online. Any other? So my question Yes. is, as an administrator, what are the experiments we can do? Like, this question is from all the students who are preparing for civil services. And what are the experiments? What are the addition we can do from our side so that we can improve their life or their health, or to improve their source of physiological needs? It's like a question. एक पेशेंट बीमार है, उसमें क्या क्या दवाई दी जाए बताइए तो. एक पेशेंट बीमार है, क्या क्या दवाई दी जाए बताइए तो. कैन यू आंसर? Any intelligent doctor will tell no, I cannot. तो एक्सपेरिमेंट में क्या किया जा सकता है? It depends. What is their deficiency? किस चीज की कमी है? Depends on that. और किस चीज की कमी है यह पहचानने के लिए प्रश्न उचित होगा. There will be appropriate question. How would you diagnose the deficiency in development and take corrective action? ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए. जो बीमार है उसकी डायग्नोसिस कैसे करेंगे कि क्या बीमारी है, तब इलाज करेंगे. That will be the framing of the question. Yes, sir. I got it. First, we have to have a diagnosis of deficiency in development and then find out the answer for that. और मैं बताऊं, again, there are standard criteria and indicators for finding the deficiency. तो किसी एक दिन फिर कभी चर्चा होगी. तो these are known as social indicators of development. चलो, थैंक यू सर. ठीक है. बहुत बहुत मजा आया और मैं डेफिनेटली स्टूडेंट्स को तो फायदा हुआ ही. मेरा ख्याल है शायद बडिंग एंथ्रोपोलॉजिस्ट वुड हैव आल्सो बेनिफिटेड. और जैसे कि ललित सर ने कहा है कि आपको दोबारा आना चाहिए, अब दूसरों का फायदा, तो यही तो एंथ्रोपोलॉजी का ऑब्जेक्टिव है. अभी नहीं, पर आफ्टर ए फ्यू मंथ्स आई विश आई विल इनवाइट यू अगेन एंड जस्ट लाइक दिस टाइम. आपने एक बार में हाँ कर दिया था, तो मुझे लगता है कि सर एक क्वेश्चन था मेरा. बोलो हमें. हाँ सर, एक जैसे हम लोग जब वो संथाल ट्राइब जो बंगाल में हम लोग देख रहे थे, तो शुक्लता जी ने कुछ हायरार्किकल स्ट्रक्चर का शायद डिस्कशन किया था वहाँ पे, जैसे कि प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, तो वो एग्जिस्ट करता है वहाँ पे? उन्होंने बताया तभी तो एग्जिस्ट करता है. ये उनका आदिवासियों की अपनी विलेज डेवलपमेंट VDC बनाया है, और उस VDC में गांव वाले मिल करके एक समिति बनाया है आदिवासियों के उन्नयन के लिए, उनके विकास के लिए. ओके सर, तो उसमें सारे जेंडर मतलब मेल फीमेल दोनों? हाँ, VDC में तो है. ओके सर, थैंक यू. सर एक क्वेश्चन था. हाँ. Sir, is there any change in their behavior when they are being observed compared to when they are idle? And how does it impact the result of anthropologists about their case studies? Sorry, I could not understand the question. फिर से बोलेंगे? Sir, is there any difference between their culture or their behavior when they are being observed as compared to when they are idle? Each community have their uniqueness about the culture. Like Santhal are different from the Lodhas or from Mankeria. That is the uniqueness of their culture. So if you want to know what is the uniqueness, that we have to know from them. They will tell.
No, sir. For example, My I will question tell was, one thing, like Lodhas, they are pre-agrarian. They do not grow crops like paddy, pulses, mostly dependent on the forest resources. Now they are doing some vegetables, some growing. Whereas Santhals are cultivators, agriculturists. So all those cultural pattern of agricultural practices are part of their culture also. Sir, I think his question is coming from the postmodernist point of view, that when a culture is observed, it changes. I think he's asking yes, sir. from that point of view. Yes, sir. That was the question. Culture is continuously changing. extend- Right from your Paleolithic to till today, now in this digital age, is continuously changing. It's never static. It varies in the degree and nature. Yeah, it is for our convenience. We have made post, pre, neo. This is for our convenience. It's a continuous flow. Thank you, sir. Hello, sir. I want to expand the last question. Sir, what are the limitations you encountered? I'm sorry, I'm unable to hear. Hello, sir. थोड़ा I'm जोर से audible. बोलो मैं Am I audible, Ma'am, sir? be loud. थोड़ा loud. Yeah, tell me. Sir, what are the limitations you encountered while using digital ethnography in applying the anthropological methodologies? Sorry, yes, I applied the anthropological method, but So these what are are the the hybrid. This is called the hybrid. With the anthropological method, we applied this technology, digital technology, and now we will be further using. I'll tell you, Vedji, maybe within a month you will see Ibrahim is using AI and mechanism for anthropological tools and method also. It's evolving. Yeah. And no single theory will be applied for any developer. I told from the beginning, all the theories are interconnected. Thank you, sir. Okay, So nice. thank you very much. Actually, today early morning temperature in Delhi was below 3 degrees. And still some of the students were able to arrive, but online we have good numbers. And I think by evening, 500 people must have seen this video. So that shows the importance of your lecture, and wish we meet soon. Thank you, sir. So nice of you. Thank you. सभी को Thank you, sir. शुभकामनाएं. Wish you all the best. And I tell you, in the beginning, anthropology is a very rich subject, very important. It gives me my shape, my thought, my ability to work with the people. But anthropology should be understood in a holistic way. We call holistic, but we don't work. And I work in a holistic way. Thank you. Thank you. Namaskar. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.